Hello everyone, welcome to Suraj Education Group. Today I, Taruna Saini, PGT Commerce, will teach you the next topic of Chapter 5, Algebraic Expression, that is multiplication of binomial with binomial. Till now we have studied the multiplication of monomial with monomial. Then we have discussed that multiplication of binomial with binomial, and in today's class we will study the multiplication of binomial with binomial. So here you can see that binomial means an algebraic expression which has the two terms. So here you can see that x plus y is a binomial. It has the two terms. And another binomial, that is z plus r, it also has the two term. So what is the process in this exercise? That firstly you will multiply x with z as well as with r. You will multiply x with z and x with r. Also you will multiply y with z and y with r. I am repeating, x will be multiplied by z and x will be multiplied by r, and again in the next case y will be multiplied by z and r. So we use this method to find multiplication of binomial with binomial. We also discuss the column method. So the exercise 5.5, multiply the following binomials. Here you can see that in all the examples there are two terms. So all are the examples of binomial, and you have to use the same trick, that is multiplication. Firstly 2a square will be multiplied by a square, then 2a square is multiplied by 3x square, then 5b multiplied by a square and 5b multiplied 3b square. So let's start. You can have a screenshot of the exercise if you don't have the book by pausing the video. Now we can start exercise. The topic is multiplication of binomial by a binomial. Multiply the following binomials. Binomial is an algebraic expression having two terms. So here it is the question, 2a square minus 5b square in the bracket, then bracket start, a square plus 3b square bracket close. So 2a square multiplied by a square. So you get 2 a raised to power 2, a raised to power 2, a raised to power 2 and a raised to power 2. When you multiply a raised to power 2 with a raised to power 2, your answer will be a raised to power 4. Then you multiply 2a square by 3b square. सो नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप 2a स्क्वेयर की 3b से करोगे तो नंबर की नंबर से करोगे एंड a स्क्वेयर b स्क्वेयर विल रिमेन एज इट इज़. देन यू विल मल्टीप्लाई माइनस 5b स्क्वेयर विद a स्क्वेयर. फिर आप माइनस 5b स्क्वेयर की a स्क्वेयर से करेंगे तो माइनस 5b स्क्वेयर a स्क्वेयर. आप 5b स्क्वेयर a स्क्वेयर को a स्क्वेयर b स्क्वेयर भी लिख सकते हो. देन माइनस 15, 5 3 is 15 and b square is b4. Now what is the next term after we have done the multiplication here? Now the next step is to make the like terms together. So by observing these two you can see that these are the like terms, a square b square, a square b square. So what do you get? 2a4, 6 minus 5 is 1 and minus 15b square. 1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है. सो 1 वी कैन रिमूव 1. सो 2a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 15b raised to power 4. In this manner you will do the question. Now first the remaining part you will do by yourself. You will try. These are left for your practice. The next question is first part, 2 plus 6yz x square y square plus 2yz. So again 2 multiply x square y square, 2x square y square. Then 2 multiply 2yz, 2 2s are 4 yz. Now 6yz is multiplied by x square y square. So it is 6x square y cube z. y की पावर ऐड हो जाएंगी. यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2 है. Then 6 2s are 12 y square, y into y is y square, z into z is z square. Now there are no like terms, so answer will be this only.
There are no like terms. If there are like terms, we will simplify them. Now first question, H part. Note down the question. 4 by 9 x square y minus 3yz. Then 2 by 9 xy square minus xz. Now firstly we will multiply 4 by 9 with 2 by 9 xy square. So 4 2s are 8, 9 9s are 81. 4 2s are 8, 9 9s are 81. X square into x, x cube. Y into y square, y cube. Now 4 by 9 is x square y is multiplied by xz. So 4 by 9 x square into x is x cube, y z. फाइन. अब आप क्या करेंगे, हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, फिर इससे की, अब इसकी करेंगे. सो 3 2 ज 6, 9 नीचे, y इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब, z अलोन, x अलोन. पीछे भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई क्यूब जेड एक्स, नो प्रॉब्लम. नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा. ओके, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y एक्स वाई जेड स्क्वेयर, 3xy जेड स्क्वेयर, 3yz 3xyz स्क्वेयर. यहाँ पे आप प्लस कर देंगे. अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन यहीं रह जाएगा. ओके, यहीं तक ही आपको करना है. देन आपका आगे क्वेश्चन आता है, यूज कॉलम मेथड एंड इवेलुएट द प्रोडक्ट. आपको कॉलम मेथड यूज़ करना है. तो कॉलम मेथड में कैसे करेंगे बेटा, कि आप ये दोनों जो बाइनोमियल हैं इनको आप नोट कर लेंगे. ये आपने दोनों बाइनोमियल को नोट कर लिया. फिर 1.6 की इससे करेंगे और 1.6 की -3y² से करेंगे. ठीक है, तो पहले हमने 1.6x को पिक किया, 1.6x की 2.2 से किया तो 3.52 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर. फिर हमने 1.6 की -3y² से किया, 1.6 की इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे. ये 16 3 ज़ा 48, 4.8 xy². अब आपको क्या करना है, अब आप 0.4y² की करेंगे 2.2 से नेक्स्ट स्टेप में कॉलम मेथड में, और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखेंगे. 4.4y² की 2.2 से किया तो 0.88, 2.2 की 0.4 से करेंगे तो 88 और 2 के बाद डेसिमल तो 0.88 xy². और फिर हम इससे करेंगे 4 3 ज़ा 12, y² कितना हो गया, y4. हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखना है, इस बात का ध्यान रखना. जैसे xy² है तो सेम पावर है x की और y की, तो हमने लाइक टर्म्स को नीचे रख दिया. अब सॉल्व कर लेंगे, ऐड करेंगे. तो यहाँ पे 3.52 x², यहाँ पे माइनस का नंबर है, यहाँ पे प्लस का नंबर है, माइनस कर दोगे और ये एज इट इज. इन दिस मैनर यू विल सॉल्व in column method. Now second B part again is the same. This is the question. This is the question. You have two numbers, 2pq minus 3p square plus 5, then pq minus q square. पहले p क्यूब की तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, p क्यूब की तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हमने p क्यूब को 2pq से किया तो 2p 4q, पी क्यूब की जब 3p² से किया तो p की पावर ऐड हो गई, p² इंटू p3 p5, और फिर 5p3. ओके, हमने मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल्स अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. रफ कॉपी साथ में लेके बैठेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एक एक स्टेप क्या बताया जा रहा है. केवल वीडियो अकेले नहीं देखना है, यू हैव टू यूज़ योर बुक एंड नोटबुक अलॉन्ग विथ यू, एंड वट एवर स्टेप्स आई एम टेलिंग you have to do along with me. Now the next step is minus q² will be multiplied by these three numbers. Minus q will be multiplied. So let us multiply. You also multiply in your notebook. Minus q² multiply by 2pq. Minus q² multiply by 2pq. So it is 2pq cube और minus. देन आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3p² q². देन आप प्लस के 5 की माइनस से करेंगे तो -5q². यहाँ पर एक भी लाइक टर्म्स नहीं थी,
तो मैंने किसी भी के भी नीचे नहीं रखा और लास्ट में आंसर एज इट इज़. Whenever you see the video, you have your book and notebook along with you. Then you will start doing the questions. Now question number 3, simplify the following. Simplify the following. So how you will do it in simplification? 9a square plus 7a plus 3a minus 2b plus 5ab. So this is monomial, this is monomial, this is multiplication of monomial with binomial. So you know very well 7 3s are 21, a into a square, 7a minus 2b, 7 2s are 14, a into b 14ab. अब आप लाइक टर्म को साथ में रख देंगे. -14 प्लस 5 तो -9 और यहाँ पे प्लस का 9 प्लस का 21 30. तो और ये लाइक टर्म्स को साथ में रख के आप इन्हें सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ टू मल्टीप्लाई एंड देन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट. बोर्ड मास के रूल के हिसाब से भी ऐसे ही होता है. देन आपका 3c पार्ट इज पी स्क्वेयर क्यू पी माइनस क्यू स्क्वेयर. ये एक टर्म हो गई आपकी, ये एक टर्म हो गई आपकी और ये एक टर्म हो गई. तो पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे. जब पी स्क्वेयर क्यू की पी से की तो पी क्यू आया, देन पी स्क्वेयर क्यूब आया. फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई की 4p स्क्वेयर क्यूब और फिर आपने इसकी की 4 2 यहाँ पे 2 आएगा एज इट इज़ -2. ओके -2 p क्यूब क्यू स्क्वेयर यहाँ पे -2 आएगा बेटा. ओके -2 आएगा p क्यूब क्यू स्क्वेयर. देन -p क्यूब क्यू और माइनस प्लस 2p क्यूब क्यू स्क्वेयर. ओके अब आपने क्या किया, आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है. जैसे ये लाइक टर्म हो गए p क्यूब और यहाँ पे ये, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. फिर दोबारा आप लाइक टर्म्स को फाइंड करें. -p स्क्वेयर क्यूब प्लस 4p स्क्वेयर क्यूब, इन दोनों को आप साथ में रख लेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 3p स्क्वेयर क्यूब. सॉल्व कर लिया. और यहाँ पे -2p स्क्वेयर क्यूब, यहाँ पे 2 आएगा माइनस का और ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3p स्क्वेयर क्यूब. अंडरस्टैंड, 3p स्क्वेयर क्यूब आ जाएगा. ये यहाँ से -2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये ओनली 3p स्क्वेयर क्यूब आंसर आएगा. ठीक है, थर्ड के सी में यू डू द करेक्शन. देन 3e a प्लस 2 a स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 4 माइनस a माइनस 2 a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 4. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो पहले a क्यूब, फिर a इंटू -2a माइनस 2a स्क्वेयर, फिर a की 4 से किया 4a. अब 2 की करो 2a स्क्वेयर, 2 माइनस 2a माइनस 4a, 2 4 8. लाइक टर्म्स विल बी कैंसिल. प्लस 4a माइनस 4a माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर. सो इट इज़ a क्यूब प्लस 8. नाउ a इंटू a स्क्वेयर a क्यूब, a इंटू 2a स्क्वेयर, a इंटू 4 4a. अब 2 से करेंगे 2a स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 8. अगेन द लाइक टर्म्स विल बी कैंसिल्ड. नाउ अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं. -a क्यूब माइनस प्लस 8. अगेन द लाइक टर्म्स कैंसिल्ड, साइन प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाती है. a क्यूब विल बी कैंसिल्ड बाई -a क्यूब. सो योर आंसर इज 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट एंड फाइंड द वैल्यू. तो बेटा क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे. आपको अच्छे से आता है प्रोडक्ट निकालना. p स्क्वेयर माइनस 8p प्लस 4 5p प्लस 2. तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों से, फिर 8p की कर लेंगे इन दोनों से और फिर 4 की कर लेंगे इन दोनों से. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेसेस पर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर लेना है. ठीक है, वैल्यू पुट करना है. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वैल्यूज़ दी हुई है आपको P1 Q-1 और R2.
And in question number 5, from the product of this and this, subtract the product of 7l m l plus 3m and l plus 2m. तो आपको पहले क्या करना है, आपको फर्स्टली प्रोडक्ट निकालना है. आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन जब आ जाएगा तो अगर आप सॉल्व लाइक टर्म है तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे और फिर जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेंगे. इस तरीके से आपको वर्क करना है. इस वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन था, सिक्स्थ में ऐड करना है. सिक्स्थ क्वेश्चन में ऐड करना है. ऐड द प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, एक ये है और एक ये है. इन तीनों नंबर को ऐड करना है. तो पहले 9x4 को x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5x6 को 2x प्लस 3 से करो और फिर इसको करो. तो इनकी सबकी इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो और इसकी मल्टीप्लाई रफ कॉपी में साथ में करेंगे और उसके बाद में जो लाइक टर्म्स हैं उनको एडलेस करके सॉल्व कर लेंगे. जैसे कि यहाँ पे इसको किया तो 9x6, 9 2 ज़ा 18x4, 5 2 ज़ा 10x7, 5 3 ज़ा 15x6, 4x5 माइनस 3x6 माइनस 12x4 माइनस माइनस प्लस 9x5. फिर मैंने इसे पावर असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया. सबसे पहले x की पावर 7 लिखा, फिर x की पावर 6 वालों को कलेक्ट कर लिया और साथ में रख दिया. फिर x की पावर 5 वालों को इकट्ठा किया, साथ में रख लिया. फिर x की पावर 4 वालों को इकट्ठा किया, साथ में रख लिया. प्लस का 15 माइनस का 3 प्लस का 4 21 हो गया. प्लस का 4 प्लस का 9 13, माइनस का 18 माइनस का 12 माइनस 13. सॉल्व कर लेंगे. So your homework is you will do exercise 5.5 today. Today we will have the live lecture of this exercise. Thank you so much. God bless you.